सोच बदलो, सोच बदलो, सोच बदलो। हमारा एक ही नारा, हमारा एक ही नारा, हमारा एक ही नारा, वंदे वंदे भारत माता की। आज गणतंत्र दिवस का एक पावन अवसर है। यहाँ पत्रिका गेट पे जयपुर के अंदर एक संस्था का बहुत बढ़िया अनुकरणीय प्रयास देखने को मिला। ख्वाहिश एक बदलाव के नाम से आप देख रहे हैं ये जो बैनर लग रहा है, और यहाँ ये स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो अपनी जो रैप है उसको स्टॉप करने के लिए कि बिल्कुल रुकना चाहिए, बहुत ही जघन्य है। और इसके लिए इन्होंने एक प्रयास करके पत्रिका गेट पर गणतंत्र दिवस के दिन एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। वास्तव में सबसे दुखद और सबसे जघन्य जिंदगी की जो घटना है वो है महिलाओं के साथ जो अपराध है। वो सबसे पहले अपराध बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये सबसे दुखद अपराध है जिसके ऊपर हमारे पूरे देश को एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। तो ये बच्चे आज सर्दी के अंदर सुबह सुबह गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ उपस्थित हुए और अपनी बात कहना चाहते हैं और एक अवेयरनेस आए, और हमारा ये जो दुखद अध्याय हमेशा हमेशा के लिए देश से ख़त्म हो, ऐसा मैं अपील करता हूँ। और इसके लिए जो बच्चे मुहिम में लग रहे हैं इनको साधुवाद देता हूँ। तो मैं चाहूँगा बच्चों, आप अपने जो जहाँ से स्टूडेंट्स हैं, आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो एक एक करके। हेलो, माय नेम इज़ संस्कृति अग्रवाल। मैं 11th क्लास से हूँ। हमें रेप को रोकना चाहिए। ये सिर्फ गर्ल्स या बॉयज़ की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। पूरे सोसाइटी को इसमें आने चाहिए। और फेमिनिज्म मतलब सिर्फ गर्ल्स की पावर नहीं है। सूडो छोटी नहीं पहनाना हमको। ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की इक्वल पावर होती है। और ये हर 16 मिनट में रेप फैल रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर हमको और मतलब इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, इन सब आगे आना चाहिए, ये सब कैंप्स वगैरह में। ये पिछले साल भी हुआ था रेप के अगेंस्ट। और अब आप इस कैंपेन से कब से जुड़ी हुई हैं और इस कैंपेन के बारे में कुछ बताएं? ये पिछले साल भी हुआ था, बट मैं इस साल ही आई हूँ। ये मेरा फर्स्ट। Hi, this is Leena. So I'm one of the part of this organization, and we have organized this movement right here, right now. So our motto to the world, to the society today is that rape is a rape, no matter for a child or a young woman or an old woman, or it is a marital rape. A rape is a crime, and a rapist should be hanged to that. And this is the appeal from all these young people out here. You can see there are a lot of boys also. So here we are appealing to the society to change the mentality and get awareness about this issue, and get your girls equipped properly to the extent that they can defend themselves if they find themselves in a situation of a molestation or a harassment. So yes, we are doing our part to the society. My question for you today is, are we as a society are improving towards it or not? These young girls and boys get introduced in such campaigns very often and now and then, and we organize self-defense for them, for especially for the girls, so that they feel equipped, they feel safe in their own country, so that they can defend themselves or even escape from a situation they feel harassed or molested into. So these are the little steps we are following, and we are educating them about the sex education. As you know, teenagers these days are very confused, and because of the confusion they take wrong steps, and that leads to a crime in the society and making all that dirt into the society. So these are the small steps as an organization we take for all of them. Hello, my name is Diksha Tulsani, and I'm here to tell you about this campaign, ख्वाहिश एक बदलाव. We are here to stop the rape. So, what is the main cause of all these? So first, going to very small step, that is our mentality. Our behavior change will change the society. If you respect women, you will respect the nation. So the main motive of this is to aware the people, is to change the society so that all these things are stopped. My name is Lavina Chetwani, and today we are organizing. We have started a camping from ख्वाहिश बदलाव. Topic is feminism. Basically, we are here for the equality of women. That we should not differ the range between the man and a girl. We should not differentiate between the feminism or male gender, basically.
एंड वी शुड चेंज आवर थॉट्स बेसिकली कि ये नहीं सोचना चाहिए कि है ना ये लड़की है तो अपन इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली तुम्हारे घर में भी लड़की हो सकती है, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं, सबके घर में होता है। तो हमें ये डिफर नहीं करना चाहिए कि यार ये तो रोड पे जा रही है चलती हुई लड़की, अपन इसके साथ कुछ भी कर लेंगे, क्या ही करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, घर पे जाके किसी को बताएगी नहीं। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा है ना अपने थॉट्स को है ना चेंज करना चाहिए। जब अपन अपनी सोच बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। हमें चेंज करना चाहिए, हम यूथ को चेंज करना चाहिए। ये नहीं, लड़कियों को भी अपना डर के नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ यार, ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार टू एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र सिंह, और आज रिपब्लिक डे पे हम स्टार्ट कर रहे हैं कैंपेन। रिपब्लिक के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, रियल पब्लिक। इस कैंपेन को हमने स्टार्ट किया है इस मकसद से कि रियल पब्लिक डोंट रेप, रियल मैन डोंट रेप। हमारा आज का जो मुद्दा है वो है एक बहुत सीरियस इशू के ऊपर, एक ऐसा इशू जो राजस्थान के अंदर तो बहुत सीवियर सिचुएशन पर जा चुका है, रेप केसेस। एनसीआरबी के डेटा को अगर देखा जाए तो हर 16 मिनट में राजस्थान के अंदर एक रेप केस हो रहा है। राजस्थान नंबर 1 स्टेट बन चुका है हिंदुस्तान का रेप केसेस के अंदर। बात आंकड़ों की नहीं है, रेप 1 हो या 1000 गलत है। और जहां इंसानियत इंसान की जाग गई है वहीं से ये बदलाव स्टार्ट होता है। ख्वाहिश होनी चाहिए कुछ बदलाव करने की, और एक मकसद को लेकर निकले थे कुछ साथी लोग, हम लोग, और धीरे धीरे एक टीम बन गई है। उस टीम का एक छोटा सा हिस्सा आज यहाँ पे है, जिसे आज हमने साइकिल रैली से, एक अवेयरनेस कैंपेन से स्टार्ट किया है। इसको बहुत लंबे चलाना है आगे, सेल्फ डिफेंसेस क्लासेस से, अवेयरनेस इश्यूज से कंटिन्यू हमें ये रैलीज और ये सब करते रहेंगे। हम लोग इस मुद्दे पर बहुत लंबा जाना है, जब तक कि हम इसे कम ना कर दें, जब तक हम इसे खत्म करने की कोशिश पूरी तरह से ना कर लें। धन्यवाद। सेक्स इशू जो है, जो रेप केसेस का जो इशू है, वो हमने आज से स्टार्ट किया है। इससे पहले जो हम काम कर रहे थे वो गर्ल्स को अवेयर करने का, जैसे हम सब टीचर्स हैं तो टीचर्स की एक बहुत अच्छी टीम है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये सब हमारा मोटो स्टार्टिंग से रहा है। इसे हम 1.5 साल पहले स्टार्ट कर चुके हैं। 5 अगस्त 2020 को हमने स्टार्ट किया था।